आज एबीपी लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं कविता कृष्णमूर्ति मैम। स्वागत है आपका एबीपी लाइव नमस्कार, पर। और ये नमस्ते। सच में ये मतलब ये मेरा भाग्य है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपका इंटरव्यू Thank ले you. रही हूँ। इट्स Thank you इट्स so रियली much. प्लेजर। आई फील वेरी ऑनर्ड। एंड Thank you. हाउ हैव यू बीन मैम? I've been very fine and thank you for inviting me. It's lovely talking to you all. Okay. So, ma'am, we'll start the interview, and my first question would be that what's your favorite song that you have recorded, and why does it hold a special place in your heart? I would still say that two songs, I'll say Hawa Hawaii and Love Story 1942, Okay. have been very special in my life because I was a new singer and Hawa Hawaii gave me a new lease of life. People got to know that there was a new singer in the industry. Okay. And it was the first naughty song that I'd ever sung. So I got a little more confidence that I can handle naughty songs. So that's the reason. And Love Story because I had been singing for Panchamda for a long time, but all the films kind of flopped. Okay. So this was one film where the song did well, and I got my first Filmfare Award for that. So I think that's the reason these two songs hold a special place in my heart. Okay. How do you feel about the evolution of music industry? Like earlier it was orchestra, then live music, and now the whole music industry has shifted to AI. Hmm. And you being a singer, you have seen everything. Yeah. What do you feel about Well, it? I still like the era when with 100 musicians I did my Hawa Hawaii live. Any mistake you had to redo the song, but the whole day we would all work together and rehearse together, and there was a great ambiance in the studio. From the smallest musician to the major ones, there was a kind of a family feeling, when we did the song. And after you finish the song, if you've sung well, so many musicians would go past and say, "Oh, bahut acha gaya aapne." It was a great feeling. So from that era to the dubbing era, a few lines at a time, I was okay with that. Now I think technically I know I have to sing one line at a time. I have adjusted to it. In fact, sometimes if I'm not well, if I have a cold, it's a big help. It's a big boon technologically. AI, I'm not sure about because I feel it depends on how the future musicians are going to handle it. If they're going to handle it to, improve the song situation and, very intelligently they use it, it's fine. But if I feel that non-musicians who don't know music can just tell AI, oh, you compose this for me, Yeah. and then they get the work and a talented musician doesn't get work, then I would feel very sad because here's a talented musician who's spent hours and he's not going to get the work. A totally non-musician who's technically very good is going to get music work. That would probably make me very sad. Yeah. मैम, इस सवाल से एक और सवाल मुझे याद हाँ, आता है कि हाँ, आजकल जो मीडिया है वो सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ हाँ पर जी, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। हाँ, देयर आर सिंगर्स हु यूज़ ऑटो ट्यून एज़ वेल। हुँ, और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि उनका जो रियल टैलेंट है वो निकल कर के सामने आ गया है। एंड अ फ्यू ऑफ the singers are there whom the audience have realized that they are not a nice singer, but because of auto tune they हुँ, have हुँ. anyhow managed to come in the industry. That's of course very sad. But when good singers who sing very well, who are very well pitched, उनके voice में जब auto tune use होता है ना, I feel very sad. क्योंकि वो metallic जो notes आते हैं वो मुझे पसंद नहीं. For my ears, I like the acoustic side of Okay. the song. So too much of auto tune, I've never been in support. But what can you do? You can't do anything, no? अभी है तो है, अभी accept करो, क्या कर सकते हैं? Also, I've heard that you have sinus and बावजूद इसके हाँ. आपने गाना और इतना बेहतरीन गाना गाया है। How और did नहीं, you? साइनस से ज़्यादा सर्दी खांसी, I'm very bronchial. But Okay. I've never allowed myself to, for बहुत सारे गाने ऐसे मैंने गाए जो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर I have fought a battle and I think if I have sung for 55 years, शुरू में इतना नहीं था, last 20 years it's bad. I have still not given up and I'm quite happy. I'm not going to give up this battle. It's a challenge and I'm enjoying it in a way. So अब काफी नए सारे सिंगर्स आ गए हैं। अभी आप कोई ऐसा नया सिंगर है जिसके गाने को आप सुनती हो और आपको बहुत अच्छा लगता हो? हाँ, जो 2001, 2010 के बाद में जैसे 2000 वो अपने देवदास में श्रेया के साथ मैंने गाया डोला रे डोला। शी इज़ अ फैबुलस सिंगर और फिर मैं सुनिधि को वॉच करती हूँ। Yeah. इतनी टैलेंटेड सिंगर है वो। फिर अरिजीत हैं और मेरे ज़माने में वो केके गाते थे। मुझे Yes, केके का yes. गाना बहुत पसंद था। इट्स वेरी सैड दैट ही पास्ड अवे। और दे वर टैलेंटेड। अभी जैसे जुबिन गर्ग पास हुए, ही वाज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। सो ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट
टैलेंटेड यंग चिल्ड्रन हैं अभी भी। और जैसे रियलिटी कॉन्टेस्ट में सुनती हूँ, बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत Yes, अच्छा true. गाते हैं। पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ वो उसी रास्ते में रहे और भगवान उनको अपॉर्चुनिटी दें कि जो उनमें से जो अच्छा है वो निखर आए और उसको काम मिले। अभी काम मिलना इस इंडस्ट्री में, दैट्स समथिंग आई कैन नॉट, बिकॉज आई फील कि एक ज़माने में म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो चुनते थे, लोगों को गाना मिलता था। अभी आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। अब तो YouTube भी आ गया है, तो एनीबॉडी इज अ सिंगर, वो गाना खुद से हाँ, कंपोज कर देते हैं, दे एग्जैक्टली। अपलोड। तो उसमें क्या होता है, कौन ट्रूली टैलेंटेड है और किसकी वॉइस, जैसे आपने कहा, टेक्नोलॉजिकली बहुत Yes, अच्छा yes, हो गया yes. है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो मुझे लगता है, पर स्टिल आई एम अ वेरी पॉजिटिवली थिंकिंग पर्सन। आई रियली फील कि कहीं ऊपर वाला साथ देता है। जो मेहनत आप करोगे, आप ईमानदार रहोगे, आप मेहनत करोगे और बिल्कुल फोकस्ड म्यूज़िक में रहोगे, तो आपकी म्यूज़िकैलिटी है वो कहीं ना कहीं वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो म्यूजिकल नहीं है वो 15 साल में फेड आउट हो जाएंगे, आप तो रहोगे ना, बस आपका करेक्ट काम। करेक्ट, वेल तो आई सेड। थिंक मेहनत और वो ऊपर वाला ज़रूर फल देता है उसका। आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। मैम, आपने आजकल के गाने सुने हैं? आजकल जो एकदम देसी हिप हॉप और रैप्स वगैरह आ रहे हैं, बादशाह हैं, हनी सिंह हैं, ये लोग रैपिंग कर रहे हैं और म्यूज़िक जो है बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है। मतलब म्यूज़िक एक हम तरीके से रिलैक्सेशन के लिए पहले सुनते थे, बट नाउ इट हैज़ बिकम मोर लाइक अ पार्टी थिंग टू डू। और रात में तेज़ गाने बजते हैं, बीट्स इतनी हाई होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू काइंड ऑफ म्यूज़िक टुडे? That doesn't bother me because I think there's an audience for every kind of music. आज भी क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होते हैं जहाँ लोग आते हैं और अच्छे अच्छे बच्चों को जो क्लासिकल गाना चाहते हैं उनको सुनते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जो 90s के कॉन्सर्ट आते हैं, हमारे कॉन्सर्ट में आते हैं। करेक्ट। और ऐसे लोग हैं जो आजकल के जो हिप हॉप है, रैप है, उस आर्टिस्ट को सुनना चाहते हैं। सो देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीबडी। और सबकी, अगर मैं तो कहूँगी सबकी रोजी रोटी चल रही है तो बहुत अच्छा है। द मोर पीपल हु गेट वर्क द बेटर। नहीं, मेरे मम्मी पापा के जनरेशन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि गाने तो पुराने जमाने के होते हैं, अब तो शोर होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को, 5 साल के बच्चे को सुनिए, उनको तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनको because थोड़ी वो ना नए पुराना बच्चे- गाना। अभी उन बच्चों को पूछिए, दिल से, ओ वी लाइक दिस सॉन्ग सो मच। सो इट्स ओके। इट्स लाइक, आई फील, यू स्टार्ट लविंग द सॉन्ग्स दैट यू हैव ग्रोन अप विद. Correct, So we've correct. grown up with Lata ji, Kishore ji, and my parents have grown up with KL I have Sehgal. grown up listening to your songs. Yeah, so exactly. So it's like that. I think there is a place for every artist. Okay. There's enough work going for मैम, अब every आप artist. क्योंकि हमारे मंच पर आए हो और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो मैं आप अपना जो फेवरेट गाना है अपना, वो एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। मैं अपना फेवरेट नहीं सुनाऊंगी। आप अभी एक गाना बोल रही थी ना जो आपको अच्छा लगता है, तो मैं चलिए आपके लिए ये गाना सुना बिल्कुल देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरे साजना, तेरे बिन जियो नहीं ओ लगदा मैं ते मर जावा, ले चले जा सोनी, ले चले जा, दिल ले चले जा। थैंक यू सो मच मैम। Thank मैंने you. अभी मैं मैम से यही बता रही थी कि मैं बचपन में, मैम आपको पता है, मैं चूड़ियाँ पहन करके इस पे डांस किया करती थी और इमिटेट किया और ये करती शादी थी। वाला गाना है। Yes. I know. तो मतलब दिस इज माय चाइल्डहुड, रिकॉल हो गया सब कुछ। थैंक Thank यू you. सो मच मैम Thank you फॉर so बीइंग ऑन much. Lovely ABP to and talk it to was you. really a pleasure to meet Thank you. you. You're a lovely girl. Lovely talking to you. Thank you Likewise, so ma'am. much. Thank you so much.